Now, sir, Bengal has become the hub of various industries, including cement, coal, and leather. Even Flipkart and Amazon are also doing business in and around Dankuni, within my constituency, Kollani and other places. The finance minister mentioned a kartabbo to fulfill the aspiration of the people by making them strong partners in India's prosperity. But you intend to fulfill the aspiration of selective people while the common people suffer. 10 crore people of Bengal are being branded as Bangladeshi and by the Prime Minister and the Honorable Home Minister. Due to the unplanned SIR, 127 deaths have happened, 1.36 crore cases of logical discrepancies have been recorded, and 32 lakhs unmapped cases in West Bengal. This takes the totally tally to 1.65 crore. Now, since we have moved the Honorable Supreme Court, every day the Supreme Court is interfering with the matter of SIR and giving directions, one after another direction, so that not a single eligible voter is deleted from the final voter list. This is the stand has been taken by our Honorable Chief Minister. This is the stand has been taken by our General Secretary Abhishek Banerjee. This is the stand of crores and crores Trinamool Congress workers in the state of West Bengal. Sir, the problem with the budget is not only what it allocates or not. The bigger problem is the governance culture. It represents when announcements are plentiful, but implementation is scarce. Sir, for West Bengal in particular, the budget gaps are political fodder. Virtually no direct benefits to the state and notable exclusion. Example given, Bengal's mineral reserves left out of development plans. This has amplified the opposition charge of the centre's bias and neglect towards non-BJP states, reinforcing a narrative of an anti-federal budget. No special financial package or major new projects for West Bengal were announced. Flagship women's schemes like Beti Bachao, Beti Padhao, etc. were largely steady, and there was no special package for women's safety or health aside from continued funding of existing program. Our Chief Minister Mamata Banerjee has condemned the budget as anti-women, arguing that women receive nothing substantially new. It is noted that the budget lacked new measures for scheduled caste and tribes welfare beyond the scholarship, calling it against the scheduled caste and scheduled tribe. Sir, the most striking difference in previous years and this year's budget is in the capital expenditure in defense sector, which funds modernization, acquisition, and domestic manufacturing. But in terms, budget expenditure percent is reduced to 14.67% this year against 16.86% in 2021, and allocation for Department of Space is over 0.26% in 2026 and 27 against 0.48%. Sir, it is everybody's concern. It is everybody's concern regarding the border area. All we are, when this country is facing the border area problem, whether it is a China border, whether it is a Pakistan border, whether it is a Bangladesh border, at that point of time, you are allocating the funds, reducing the budget. Sir, it is not. The writer writes a book, that's much. Writer gives it the publication, that's much. West Bengal does not find a mention in the budget. बोलते हैं वेस्ट बंगाल बजट में एक बार भी मेंशन नहीं हुआ. ये डेलिबरेटली पता नहीं क्यों मिस इन्फॉर्मेशन करना चाहते हैं. मैं बोलना चाह रही हूँ, वेस्ट बंगाल पूर्वोदय में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट में, वो स्ट्रैटेजिकली उनको उधर लोकेशन पूर्वोदय में, उसके तहत ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दुर्गापुर से बजट अनाउंसमेंट इतना क्लियर करती है, इंटीग्रेटेड ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दुर्गापुर में एक नोड रख करके आसनसोल दुर्गापुर बेल्ट को पोजीशन करती है और ईस्टर्न इंडियन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर उससे बनेगा. दुर्गापुर उसका एंकर होगा. सेकंड, हाई स्पीड रेल टू नॉर्थ बंगाल, वाराणसी से जो अभी मैंने बताया सिलीगुड़ी जाने वाले ट्रेन, हाई स्पीड रेल नॉर्थ बंगाल को पहुंच रही है. सिलीगुड़ी नॉर्थ में एक ट्रांसिट हब जैसे बनने वाले हैं, वो भी बंगाल में है. तीसरा,
जूट रिवाइवल के लिए हमने इतना बड़ा घोषणा की है, नेशनल फाइबर स्कीम फॉर सेल्फ रिलायंस इन जूट, और बंगाल के हुगली बेल्ट में जो जूट मिल्स है उन सब में लाखों जूट फार्मर्स को उसके द्वारा उनका जीवन शैली ही गुजरता है। उनके लिए अलग से नेशनल फाइबर फॉर सेल्फ रिलायंस इन जूट, क्या सिर्फ बंगाल के लिए वो एक अकेला स्कीम नहीं होगा, बड़ा सा स्कीम नहीं होगा, किसान के लिए नहीं होगा, वो भी बंगाल के लिए है। इसके अलावा लेदर एक्सपोर्ट्स, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स, इनपुट्स, शू अपर का इनपुट्स का भी हमने ड्यूटी फ्री कर दिया, जिससे लेदर इंडस्ट्री में काम करने वाले बंगाल में ज्यादातर लोग पहले 6 महीने के लिए इंपोर्ट करें और 6 महीने के अंदर एक्सपोर्ट भी करना पड़ता था। अभी वो नहीं है, आप इंपोर्ट करो, पूरे 1 साल रखो और उसके बाद आराम से एक्सपोर्ट करो। ये सुविधा लेदर इंडस्ट्री में काम करने वाले के लिए इस बजट में हमने लिया है, वो बंगाल के लिए नहीं है। फिर पूर्वोदय, इसमें टूरिज्म डेस्टिनेशन, ये पूर्वोदय 5 स्टेट के लिए, हर एक स्टेट में एक वर्ल्ड क्लास टूरिज्म डेस्टिनेशन हम बनवाएंगे, इसका अनाउंसमेंट भी हुआ। वेस्ट बंगाल उनके अपने चुने हुए कुछ क्षेत्र को ऐसे हाईलाइट बना सकते हैं, वो अपने स्टेट के इच्छा के अनुसार वो कर सकते हैं, वो भी उनके लिए। ऐसे ही जंगल महल एरिया में जो बीड़ी बनाने के लिए तेंदू लीफ निकालते हैं फॉरेस्ट से, उस तेंदू लीफ के ऊपर TCS हम कलेक्ट करते थे, उसको 5% से 2% को कम करवाया इस बजट में। उसके बेनिफिट सीधा बंकुरा, पुरुलिया और मिदनापुर में जो काम करते हैं, फॉरेस्ट में जाकर के तेंदू पत्ता ले आकर के बीड़ी वर्कर को देते हैं, उनको सीधा मिलेगा। ये सब बंगाल के लिए नहीं है क्या? बंगाल का मेंशन नहीं हुआ, ऐसे आरोप लगा रहे, वो गलत आरोप है। फिर और मैं ये कहना चाह रही हूं, हमने केमिकल पार्क का अनाउंसमेंट किया और वो केमिकल पार्क को चैलेंज मोड में ले आने के लिए क्या बंगाल अपने साहस दिखा नहीं सकते कि जहां उनका हल्दिया पेट्रोकेमिकल यूनिट के बगल में केमिकल पार्क अगर बनना चाहते हैं, हमने तो 3 केमिकल पार्क अनाउंस किए बिना स्टेट का नाम लेते हुए। बंगाल सामने आने दो, केमिकल पार्क बनने के लिए वो भी सेंटर के साथ काम करें। बंगाल के जनता के हित में ये कर नहीं सकते हैं, मगर ना, बंगाल के लिए कुछ नहीं दिया। फिर सिटी इकोनॉमिक रीजन का अनाउंसमेंट हुआ। इसमें हम बोल रहे हैं, आप उदाहरण के लिए मैं बोल रही हूं, मैंने नाम नहीं लिया, कोई भी स्टेट आ सकते हैं सामने। हर साल अगले 5 साल के लिए हर साल 1000 करोड़ देंगे एक सिटी का इकोनॉमिक रीजन बनाने के लिए। क्यों? कोलकाता, हावड़ा, आसनसोल, दुर्गापुर उसमें शामिल हो सकते हैं। 5000 करोड़ लोग 5 साल के लिए, कौन रोक रहा है भाई आपको? नहीं, हम गुस्से में हर बार सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे खिलाफ है और डांट खाएंगे उधर, सुप्रीम कोर्ट में डांट खाओगे, मगर एक्सेप्ट नहीं करोगे, सेंटर आपको हेल्प कर रहा है। ये सिटी इकोनॉमिक रीजन क्यों नहीं कर सकते? नहीं, हम सब हाथ में दे, फिर भी केंद्र सरकार के ऊपर डांट पड़ते होना चाहिए। ये शर्मनाक कॉन्डक्ट मुझे लगता है बार बार केंद्र सरकार के ऊपर फेडरलिज्म का लेक्चर देने वाले बंगाल, आइए सामने आइए, इसमें प्रपोज करिए, ले लीजिए।